Good afternoon, everyone. So we'll start with a very important divisional chart today. That is the Shans, or we call it D10 chart. And it's a wonderful chart because, and it's most important also because we use it for the career analysis, or we divide the sign into 10 equal parts so that each the chance is of 3 degrees. And if you see, we divide the zodiac into 120 equal parts in this dashans. And what we examine from dashans is the basically the profession and fame, power, position, status, everything about the profession. So I think we can share the screen also. The 10th house is also known as the house of karma. Karma ka house hai, or everything about profession we examine with this chart, or you can say profession, fame, power, position, authority, and honor also. Honor is something different from the profession because it indicates whether we will lead a respectful life or not. Success, ambitions, employers, superiors, relations with the bosses, recognition from the authorities. And as far as the mundane astrology is concerned, when we talk about a country, then it represents the king or the head of the state, your administration of the country, import, export, honor and reputation of the country, party in power, leaders, political situation, and external trade also. And normally we also know that from the 10th house, we see the father as a role of husband of your mother. And since the second house is the house of wealth, so this is ninth, this is second from the 9th house, so it represents the wealth of the father also. Now, as far as the karaka for the profession are concerned, we already examined number of times that the main karak for karma is Saturn, Shani. And without the blessing of Saturn, we will not forced to do work, actually, do the karma. So Saturn forces us to do the karma. And you might have seen a lot of people, those very lazy type of people, they don't want to do anything because the Saturn is very malefic in their case, or is not well placed. So जो भी Saturn अगर well placed है, तो a person is forced to do the karma, is very hard working also, or he takes all the responsibility on himself also because he believes in doing the karma also. The main planet as far as the karma or the profession is concerned is the Saturn, because that forces you to do is initiate the karma. Then the difference between the labor class and we people is that we involve intelligence also into the karma. So we start growing as soon as we involve intelligence into the karma. उसके बाद जो है, even if we involve intelligence, you might have seen a lot of people, they're very good artists, very good singer, but nobody knows them, or they don't have enough money also. And want to have prosperity in the profession, naturally you need the blessing of Jupiter also. और जैसे ही Jupiter की blessing हमको मिलती है, then we start having prosperity in the profession, we start growing, we have luck in the profession, और हमारे पास पैसा भी आता है और उसकी growth भी होती है. But ultimate aim of profession is that someone should know you, everyone should know you. So that is the fame, eminence, and status. And that is because of the blessing of sun. So depending on कि कौन से planet आपके strong हैं आपके horoscope में, आपको जो profession में वही चीज आपको मिलेगी. अगर Jupiter strong नहीं है तो whatever you may do, how much intelligence you may be, how much creative you may be, but you will not have enough money also. और जब तक sun strong नहीं होगा, जब तक कितना भी पैसा आपके पास हो, लेकिन आपको fame नहीं मिल सकता actually. और even you might have seen some people कि they don't involve intelligence, Mercury वगैरह इनका बहुत अच्छा नहीं होता, but अगर Saturn, Jupiter and Sun is very strong,
So they get everything in the life. They get money also, they get fame also. जैसा हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में जो है. अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रोफेशन को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीजें हम देखते हैं टू नो अबाउट द प्रोफेशन इन ए पर्टिकुलर चार्ट एक्चुअली. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं. प्लैनेट्स इन द 10th हाउस, प्लैनेट्स प्लेस्ड इन द 10th हाउस. जो 10th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं सबसे पहले हम उनको देखते हैं. फिर देखते हैं कि 10th हाउस में which are the planet which have an aspect on the 10th house. 10th हाउस के ऊपर किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है. जैसे नॉर्मल हम लोग प्लैनेट और कारक और लॉर्ड को देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ भी 10th हाउस को देखते हैं. प्लैनेट देख लिए, उसका एस्पेक्ट देख लिया कौन कौन से प्लैनेट का है. उसके बाद हम 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखते हैं और फिर उसके बाद कारक की पोजीशन देखते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन, जैसे 4 कारक हम लोगों ने डिस्कस किए, आपको उन चारों की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में कैसी है उसी के हिसाब से आपको प्रोफेशन में रिजल्ट भी आपको मिलते हैं. देन वी आल्सो सी द पोजीशन ऑफ डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर ऑफ द 10th लॉर्ड. डिस्पोजिटर का मतलब है कि 10th हाउस का लॉर्ड जिस साइन में प्लेस्ड है उस साइन का लॉर्ड. डिस्पोजिटर होता है कि कोई भी प्लैनेट जब जिस साइन में प्लेस्ड होता है उस साइन के लॉर्ड की क्या पोजीशन होती है. दैट आल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन और इन द रोल ऑफ एनी प्लैनेट और द हाउस. तो हमें जब भी किसी भी हाउस को देखा जाता है या किसी भी प्लैनेट को हम देखते हैं तो हमेशा जो उसका जो डिस्पोजिटर है या जिस साइन में वो प्लेस्ड है उस हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है उसका भी इन्फ्लुएंस उस प्लैनेट के ऊपर या उस हाउस के ऊपर पड़ता है. और यहाँ हम जो डिस्पोजिटर देखते हैं 10th हाउस का लॉर्ड, हम लग्न चार्ट में भी देखते हैं और नवांश चार्ट में भी देखते हैं. इसके बाद there are a number of other houses which have very important role in the matter of profession. जैसे आपने देखा था कि मैरिज के लिए बहुत सारे हाउसेस हैं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के लिए. ऐसे ही प्रोफेशन के लिए भी not only 10th house, other houses also play a very important role actually. So we have to examine those houses also. और हर हाउस का देखेंगे आप अलग अलग रोल है, अलग अलग इन्फ्लुएंस है इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन. दैट आल्सो वी विल स्टडी कि कौन कौन से हाउसेस हमें देखने चाहिए प्रोफेशन के लिए एक्चुअली में. और particularly in profession and particularly in the business actually you need to pump a lot of money in the business, whether it's a new business or new product or diversification or expansion. You need to put a lot of money from time to time. So therefore finance becomes very important in the matter of business if you are pursuing the business as a profession. तो उसके लिए हमें बहुत सारे जो हमने देखा था कि हमने जो डिफरेंट हाउसेस थे उनको हमने 4 त्रिकोण में डिवाइड किया था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. तो यहाँ जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण वर्ड 2nd, 6th एंड द 10th हाउस. तो those play a very important role particularly in the matter of people who are pursuing a business as a profession. और उसके बाद हम जो कंसर्न डिविजनल चार्ट है, रेलेवेंट डिविजनल चार्ट है, जिसको हम दशांश चार्ट कहते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस दशांश चार्ट को भी हम एग्जामिन करते हैं. तब हमें प्रोफेशन के बारे में किसी भी नेटिव का आइडिया लगता है, ये सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो प्लैनेट हैं 10th हाउस में और जो लॉर्ड है और जो प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, उन सबका रोल है, जैसे मैंने कहा कि दे हैव एन इन्फ्लुएंस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन. बट क्वेश्चन ये है कि ये बहुत सारे प्लैनेट हो गए, इसमें से कौन सा जो मेन प्लैनेट है जिसका कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपके प्रोफेशन के मामले में, दैट वी हैव टू एग्जामिन बिकॉज देयर विल बी नंबर ऑफ प्लैनेट 3, 4, 5, 6. सो यू डोंट नो कि विच प्लैनेट हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन. तो उसको एग्जामिन करने के लिए उन्होंने कहा कि हम उसको एग्जामिन करेंगे कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका कि इन्फ्लुएंस उस प्रोफेशन के मामले में सबसे ज्यादा हो. तो 3 टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं कि पहली चीज ये है कि मान लीजिए कि 10th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है और ना ही उसको देख रहा है कोई प्लैनेट. Neither there is a planet in the 10th house nor any planet has an aspect on the 10th house. तो हम क्या करते हैं उस केस में कि हम 2 चीजों को एग्जामिन करते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को एंड लॉर्ड ऑफ द नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड. पहला हमने देखा कि अगर कोई प्लैनेट 10th हाउस में नहीं है, ना ही कोई प्लैनेट
10th हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है। तो उस केस में हम 10th हाउस के लॉर्ड को एग्जामिन करेंगे और जो नवांश में जो 10th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, मतलब जिस साइन में है उसके लॉर्ड को एग्जामिन करेंगे। सेकंड सिचुएशन में भी कि देयर इज ओनली वन प्लैनेट व्हिच इज आइदर देयर और हैज एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। तो उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि हम प्लैनेट को कंसिडर करते हैं, कौन सा प्लैनेट है जिसका 10th हाउस के साथ एसोसिएशन है। फिर 10th हाउस के लॉर्ड को हम देखते हैं और फिर लॉर्ड ऑफ द नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड की नवांश में क्या पोजीशन है, किस साइन में है, और उस साइन के लॉर्ड को हम देखते हैं। एंड थर्ड सिचुएशन मे बी दैट वी हैव मोर देन वन प्लैनेट इन द 10th हाउस। 10th हाउस में जो एक से ज्यादा प्लैनेट या तो वहां पर हैं या उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दीज प्लैनेट्स जो वहां पर हैं और जो उसको देख रहे हैं, उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको कंसिडर करेंगे, 10th हाउस के लॉर्ड को कंसिडर करेंगे और जो लॉर्ड ऑफ द नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड। तो ये तीन तीन प्लैनेट या डिफरेंट सिचुएशंस में आपको प्लैनेट मिले और इनमें से हर केस में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा, जैसे मान लीजिए कि थर्ड केस था कि मोर देन वन प्लैनेट आर देयर इन द 10th हाउस और हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। तो उसमें से हमने जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है उसको पकड़ा पहले, फिर हमने 10th हाउस के लॉर्ड को देखा और फिर थर्ड प्लैनेट को देखा, लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड। और इन तीनों प्लैनेट में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, that will have the maximum influence as far as the decision or about the nature of the profession is concerned। तो उस केस में हम उस प्लैनेट का रोल सबसे ज्यादा होगा और वही प्लैनेट डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का प्रोफेशन आपका होगा। इसके बाद जो लॉर्ड ऑफ, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे 10th हाउस के लॉर्ड की, उनका जो प्लेसमेंट होता है डिफरेंट हाउसेस में, that has a very important role in the matter of profession also, कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है, सॉरी ये वाला जो दिस वन 10th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, तो उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस टाइप से इन्फ्लुएंस होता है, तो दैट आल्सो हैज अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। तो हम 10th हाउस के लॉर्ड को एग्जामिन करते हैं कि डिफरेंट हाउसेस में होता है, तो उससे हमारा प्रोफेशन जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए कि 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो पहली चीज तो ये है कि एक केंद्र का लॉर्ड फर्स्ट हाउस विच इज बोथ केंद्र एज वेल एज त्रिकोण वहां चला गया, तो दे कैन नॉट बी अ बेटर पोजीशन देन दिस। और इसको हम सिंहासन योग भी बोलते हैं। जब आप योग पढ़ेंगे कि जब भी 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तो यू गेट अ वेरी हाई पोजीशन, और इसको हम सिंहासन योग कहते हैं प्रोफेशन के मामले में। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में गया है तो देयर कैन नॉट बी अ बेटर पोजीशन देन दिस एक्चुअली। वैसे भी केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में जाए या केंद्र में जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है, और यहाँ तो फर्स्ट हाउस है तो नेचुरली इट्स बेस्ट पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। और इसमें क्या होता है कि जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो सबसे पहले तो यह है कि पर्सन इज अ वर्क अल्कोहलिक, उसको काम में उसका बहुत मन लगता है और अपने एफर्ट्स से वो आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का सहारा लेना पड़े या किसी दूसरे के दम पर वो आगे बढ़ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटी, ओन एफर्ट्स। और उसके अंदर परसिवियरेंस बहुत ज्यादा होता है और सक्सेस है, स्टेटस है, एंड ही हैज अ रिलेशन विद द पावरफुल पीपल इन द पॉलिटिक्स। और जो फर्स्ट हाउस की क्वालिटीज हैं, कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, परसिवियरेंस है, वो सब उसको मिलती हैं। फिर 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो देखिए सेकंड हाउस जो है 10th हाउस से 5वां स्थान है, 5th हाउस है। 5th हाउस एक तरह से 10th हाउस के लिए त्रिकोण स्थान हो गया, और इसको भी हम सिंहासन योग कहते हैं जब भी 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस दोनों में से अगर किसी में भी हो तो ये भी सिंहासन योग बनता है। दिस इज अगेन ए वेरी गुड पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इन द सेकंड हाउस। और त्रिकोण स्थान में होने से अपने आप प्रोस्पेरिटी आती है प्रोफेशन में। पर्सन यूजेस इंटेलिजेंस, पर्सन इज वेरी क्रिएटिव आल्सो इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। तो उसका जो रिजल्ट है कि पर्सन इज वेरी फॉर्चुनेट, ही गेट्स स्टेटस, fame due to own efforts. He has unlimited power and authority. And many people you might have seen that they get engaged
और दे टेक ओवर द फैमिली बिजनेस। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तो उसके भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि आप you may get involved in the family business or you may even take over the family business। तो बहुत से लोग जो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं अगर 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है। और ऐसे लोग जनरली होटल, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ आल्सो, इससे अर्थ त्रिकोण इज कनेक्टेड विद द फाइनेंस आल्सो। तो इसलिए जो है उस टाइप का भी जो रोल होता है आपके प्रोफेशन में उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं एंड यू आर एक्सेलेंट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ एंड एज यू माइट हैव सीन हियर कि बहुत अच्छा माना गया 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो। और जैसे आजकल हम लोग आफ्टर एक्वायरिंग ए गुड क्वालिफिकेशन वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द हाई सैलरीड जॉब, we need the high package, everybody talks about the high package after getting qualifications। और उसके लिए जब तक सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखिए कि जो भी आपके पास आता है कि मुझे बहुत हाई पैकेज जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, हाई सैलरी जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, बट जब तक सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा you cannot get a high salaried job, you cannot get a high package, you cannot get a wealth in the profession अगर सेकंड हाउस अच्छा नहीं है, वॉट एवर मे बी योर क्वालिफिकेशन। तो इसलिए सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है इन केस यू वांट money in the profession, you want a high salaried job, you want a high package, or even if you want the money in the business, then second house need to be very strong। और वैसे भी जब फिफ्थ हाउस हो गया 10th हाउस से तो नेचुरली वो प्रोस्पेरिटी का हाउस हो गया प्रोफेशन के लिए। फिर अगर 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हमने देखा हमारा पराक्रम है, हमारे एफर्ट्स हैं, उपाचय स्थान है। दिस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो, दिस इज द हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल आल्सो। तो दिस इज द हाउस ऑफ इनिशिएटिव, हमारे अपने एफर्ट्स हैं। तो इसलिए अगर 10th हाउस का लॉर्ड उसमें थर्ड हाउस में जाता है, बट ध्यान रखिए कि थर्ड हाउस जो है वो 10th हाउस से 6th हाउस है, एंड 6th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो, इट्स ए त्रिक हाउस एक्चुअली। तो प्रोफेशन के लिए थर्ड हाउस त्रिक हाउस भी बन जाता है, लेकिन ये हाउस ऑफ इनिशिएटिव है। तो जो भी लोग होते हैं दे लॉट ऑफ इनिशिएटिव, दे वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड उनके जो प्रोफेशन होते हैं बिकॉज थर्ड हाउस मीन्स द हाउस ऑफ कांस्टेंट ट्रैवल आल्सो। तो ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन होता है उसमें कांस्टेंट ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, बट नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बट ए शॉर्ट ट्रैवल। दे वर्क हार्ड एंड बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये 6th हाउस भी है 10th हाउस से, तो नेचुरली यू हैव टू face lot of problems from the opponents or the lot of hurdles in the profession also। then अगर 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में, तो पहली चीज तो यह है कि एक केंद्र का लॉर्ड दूसरे केंद्र में चला गया, और दूसरा जब लॉर्ड यहाँ पर होगा 10th हाउस का तो इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। और जब कोई भी प्लैनेट अपने साइन को एस्पेक्ट करता है किसी भी हाउस में तो उस हाउस से कंसर्न राजयोग बनाता है। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है तो 4th हाउस को 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा जो कि उसका अपना साइन होगा, तो नेचुरली अपने आप ही एक राजयोग बन गया कंसर्निंग प्रोफेशन। तो ऐसे लोगों को पहली चीज तो ये है नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट, versatile wisdom, all those things actually। and 4th house is the house of immovable property also, real estate, land actually। तो इसलिए chances होते हैं कि ऐसे लोग may be involved in the agriculture, real estate, और हम conveyance भी हम 4th house से देखते हैं तो ऑटोमोबाइल के काम में भी ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन। एंड 4th हाउस हम पब्लिक भी देखते हैं, जैसे हम जब मुंडेन की बात करेंगे या जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं या जो एक्टर होते हैं उनके लिए पब्लिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे 4th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और जिनका भी जब 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होता है तो ऐसे लोग दे गेट पावरफुल पोजीशन इन द पब्लिक आल्सो। फिर अगर 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो, अगेन केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में चला गया तो राजयोग बन गया, प्रोफेशन से कनेक्टेड स्ट्रेट अवे। और सेकंड है कि हाउस जो 5th हाउस है
वो आपने देखा कि दिस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी आल्सो। तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन उस टाइप का होता है। पहली चीज तो दे गेट प्रॉस्पेरिटी इन द प्रोफेशन, पहली चीज वो अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी क्रिएटिव टाइप के जॉब होते हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, राइटर, एक्टर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, ऑल दोस टाइप वेयर क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व, उस टाइप के जॉब में लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए कि जो फिफ्थ हाउस है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, अभी हम स्टडी करेंगे भी इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। क्यों? बिकॉज दिस इज द 8th हाउस फ्रॉम द 10th हाउस। अगर आप 10th हाउस से काउंट करेंगे तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन 8th है वहां से। और 8th हाउस किसका होता है? लॉन्गेविटी का। तो दिस इज द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन। और यू कैन से कि एक काम बंद होकर दूसरा काम मिलना, or even you can say the new opportunities in the profession that also we see from 5th house only। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा खासा जॉब में हैं या अच्छे खासे बिजनेस में हैं और 5th हाउस के ऊपर कोई या तो एडवर्स दशा शुरू होती है या कोई ऐसा ट्रांजिट आता है एडवर्स कि आपकी नौकरी या बिजनेस बंद हो जाता है एकदम से। एंड यू आर रियली सरप्राइज कि क्या हुआ, है सब कुछ तो ठीक चल रहा था एकदम से, ये 10th हाउस से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है बट 5th हाउस से है। क्योंकि 5th हाउस अल्टीमेट इज द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन, कि एक प्रोफेशन बंद होके दूसरा प्रोफेशन की शुरुआत। और कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं आपके पास कि मेरी नौकरी चली गई है, बिजनेस बंद हो गया है, कब दूसरा बिजनेस शुरू होगा या नौकरी कब लगेगी? तो उसमें 5th हाउस को ही देखना पड़ता है और किसी हाउस को नहीं देखना पड़ता। 5th हाउस के ऊपर जब प्रॉपर ट्रांजिट होगा या उसकी दशा ठीक होगी या कोई अच्छा इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर, तब आपकी जो है नई नौकरी लगेगी या बिजनेस आपका शुरू होगा। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी प्रोफेशन में, तो फ्रॉम दैट एंगल आल्सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। तो आगे हम देखेंगे कि 5th हाउस रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। अब जैसे हमने देखा था कि 3rd हाउस 6th था 10th हाउस से, तो इट इंडिकेटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द अपोनेंट्स आल्सो। वैसे ही जो 5th हाउस है वो 8th है फ्रॉम द 10th हाउस। तो नेचुरली इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इन द प्रोफेशन आल्सो। 5th हाउस जैसा भी होगा उसी हिसाब से इंडिकेशन मिलेगा कि प्रोफेशनल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आएंगी अथवा नहीं आएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये 5th हाउस प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। नेक्स्ट इज द 6th हाउस। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, 6th house is really a wonderful house as far as profession is concerned। क्योंकि जो 6th house की पोजीशन है, आप देखेंगे this is 9th from the 10th house and 10th from the 9th house, 9th from the 10th house and 10th from the 9th house। 9th house हमारे भाग्य का है। तो ये हाउस है जो हमारे प्रोफेशन में का फॉर्च्यून है, भाग्य है। इसके बिना आपका भाग्य साथ नहीं देगा फॉर्च्यून ये प्रोफेशन में। तो जब तक 6th हाउस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आप कहते रहिए कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मुझे सारी प्रॉब्लम आती है प्रोफेशन में, कोई सुपरसीड कर जाता है, मुझे जो जस्टिफाइड है वो भी नहीं मिलता या जो लेजिटिमेट मुझे मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, क्योंकि 6th हाउस आपका स्ट्रांग नहीं होता। तो 6th हाउस जो प्रोफेशन का जहां तक सवाल है, इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस बिकॉज दिस इज द फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन। और मैंने कहा कि दिस इज 10th फ्रॉम द 9th हाउस। क्या मतलब हुआ? दो तरह से इसका हम रिलेट कर सकते हैं। 9th हाउस आपके फादर का हाउस है एंड दिस इज 9th फ्रॉम द 10th। इट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रोफेशन ऑफ योर फादर आल्सो, कि फादर का प्रोफेशन क्या था। thirdly, जो 10th from the 9th means कि सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। जो भी आप एफर्ट्स करते हैं, जो भी आप रिसोर्सेज लगाते हैं, उन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है अथवा नहीं होता। कई बार लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार लोग थोड़े से एफर्ट करते हैं और उसका पूरा रिजल्ट मिलता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ 6th हाउस। तो 6th हाउस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है प्रोफेशन के मामले में कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भाग्य बन जाता है आपके प्रोफेशन का। और जब तक भाग्य साथ नहीं देगा, आप जानते हैं कि कोई चीज आपको नहीं मिलती एक्चुअली। तो इसलिए सब कुछ होते हुए भी, उल्टा सीधा सारा 6th हाउस खराब होते हुए भी, आप देखते हैं कि प्रोफेशन के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। और जब हम अष्टक वर्गा पढ़ेंगे
we'll have a lecture on the Astak Varga also. तो आप देखेंगे कि हम 6, 8, 12 हाउसेज जो त्रिक हाउसेज में हम नहीं चाहते कि हमारे बहुत ज्यादा पॉइंट हो या इन हाउसेज की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, लेकिन 6th हाउस के लिए हम कंप्रोमाइज करते हैं कि 6th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो अच्छा है, क्योंकि उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। तो प्रोफेशन के मामले में क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि प्रोफेशन में तो कम से कम हम अच्छा करें लाइफ में, जो है वही सबका एम है, सबका ऑब्जेक्टिव वही है। तो वहां हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग भी हो, थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और इसको हमने इसीलिए सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते हैं। इट इज सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट इज आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन, या इसको हम हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। दैट इंडिकेट्स योर कैपेबिलिटी टू एम्प्लॉय अदर्स, वो भी है इसमें जो है। तो इसलिए जो कहा गया कि अगर जब भी 10th हाउस का रिलेशन 6th हाउस के साथ होगा तो चांसेस आर दैट यू मे बी इन्वॉल्व इन द सर्विस, नॉट इन द बिजनेस एक्चुअली। तो इसलिए 6th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोफेशन के मामले में। और जो 6th हाउस है वो हमारा पता ही है आपको, डिसीज है, लीगल एक्शंस हैं, या लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व होते हैं, या एनिमीज है। तो आपकी जो जॉब होता है या जो आपका प्रोफेशन होता है वो भी इन्हीं चीजों से कनेक्टेड होता है। हॉस्पिटल है, प्रिजन है, जुडिशरी है, यू मे बी गुड सर्जन। और जो जब हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि जब तक 10th हाउस का रिलेशन 6th हाउस से नहीं होगा, क्योंकि 6th हाउस हमारी बीमारियों का हाउस है और मेडिकल डॉक्टर जो है वो उसका मेन पर्पस वही है बीमारियों को ठीक करना। तो इसलिए उसके लिए 10th हाउस का रिलेशन 6th हाउस के साथ होना बहुत जरूरी है। तो भाग्य हो गया, लेकिन साथ में क्योंकि 6th हाउस है, त्रिक हाउस है, तो यू हैव प्रॉब्लम फ्रॉम द एनिमीज आल्सो, वो प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। फिर 7th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 7th हाउस। जो प्रिंसिपल है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, वी हैव बीन डिस्कसिंग कि भवति भवम, कि जिस हाउस से हम कोई चीज देखते हैं तो उससे उतनी ही आगे जो हाउस पड़ेगा उससे भी हम उसी एस्पेक्ट को एग्जामिन करेंगे। तो जब हम 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, तो 10th फ्रॉम द 10th आल्सो बिकम्स द हाउस ऑफ प्रोफेशन। 10th हाउस हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है, तो 10th फ्रॉम 10th इज आल्सो द हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो 10th फ्रॉम 10th इज द 7th हाउस। So in any case, you have to examine the 7th house from the profession point of view or from the career point of view. वो तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, because this becomes the secondary house of profession also. और जैसे मैंने कहा कि जब 10th हाउस का संबंध 6th हाउस के साथ होता है तो यू गेट इन्वॉल्व इन द सर्विस, बट जब 10th हाउस का संबंध 7th हाउस के साथ होता है then chances are that you are involved in the business actually, because 7th हाउस जैसे हम लोगों ने जब सिग्निफिकेशंस पढ़े थे तो then we saw कि all people, the people that you come in contact apart from your family members, वो सारे जो लोग होते हैं हम 7th हाउस से देखते हैं, including your spouse also. तो बिजनेस के लिए सारे जो पार्टनर वगैरह होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, वो सब हम इसी हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 7th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सपोज यू आर इन्वॉल्व इन द सर्विस एक्चुअली, और आप बहुत बार देखेंगे कि एक बार अगर 7th हाउस से कनेक्टेड कोई दशा शुरू हो गई फेवरेबल, तो आपका मन जो है सर्विस से हट जाता है एंड इमीडिएटली उसे कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ बिजनेस करना चाहिए, एंड एट दैट टाइम यू गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस आल्सो। तो बहुत से लोग हैं आप देखेंगे कि इन एडिशन टू द सर्विस एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग देयर प्रोफेशन दे गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस आल्सो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो 7th हाउस से कनेक्टेड बहुत अच्छी दशा आती है या ट्रांजिट होता है, तो उस पीरियड में आप और मतलब अपने आप टेम्पटेड होते हैं टुवर्ड डूइंग सम बिजनेस आल्सो। तो आप दोनों काम करने लगते हैं, सर्विस भी और बिजनेस भी। फिर 8th हाउस की अगर बात करें, 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस वी नो। और जब भी किसी भी हाउस का लॉर्ड
यहाँ बैठता है तो उसको हम दुर्योग कहते हैं। इट्स बैड योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला गया तो नेचुरली इट्स वन ऑफ द वर्स्ट योगा फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि 10th हाउस की पोजीशन क्या है, सॉरी 8th हाउस की क्या पोजीशन है। 8th house is 11th from the 10th house. 8th house is the 11th from the 10th house. And 11th house is the house of gains. कि गेन अगर आपको प्रोफेशन में चाहिए तो this is only the 8th house which can have gains in the profession. तो खराब भी हुआ कि उसका लॉर्ड वहां गया तो नेचुरली आपको बहुत प्रॉब्लम, हर्डल्स, इनस्टेबिलिटी आ जाती है प्रोफेशन में। लेकिन साथ में गेन्स का भी हाउस है। तो गेन्स का मतलब होता है कि अगर प्रोफेशनल गेन नहीं होंगे तो यू कैन नॉट रीच ए पर्टिकुलर स्टेटस इन द प्रोफेशन। और जितने भी आप देखेंगे द पीपल हु आर हैविंग ए हायर स्टेटस इन द प्रोफेशन, यू ऑलवेज फाइंड दैट 10th house and 8th house, they are interrelated actually. In spite of being such a bad house which creates problem in the profession, but being the house of gains in the profession, in case you want to get a higher status in the profession, there has to be relation with the 8th house. और आप किसी को भी देखिए XYZ जिन लोगों ने हायर स्टेटस प्रोफेशन में मिला है जिनको, उनका हमेशा 10th हाउस और 8th हाउस का कहीं ना कहीं एसोसिएशन जरूर होगा। और इसके अलावा जो 8th हाउस है वो हमारे, हमने कहा था कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, तो ये मोक्ष त्रिकोण में आता है 4, 8, 12 हाउसेस। और इसी हाउस की वजह से आप यहाँ बैठे हुए भी हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बना एस्ट्रोलॉजी के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ द 8th हाउस, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट। तो जब भी आपका इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट सब्जेक्ट में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ 8th हाउस। तो 8th हाउस जब स्ट्रांग होता है, या हम कहेंगे 8th हाउस के साथ जो प्लैनेट है नॉलेज के प्लैनेट कौन से हैं, मरकरी और जुपिटर, जब उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप ऑकल्ट सब्जेक्ट में आपको ज्ञान मिलने लगता है। तो ऐसे लोग जब 10th हाउस का लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो जो प्रोफेशन होगा, मे बी स्पिरिचुअल टीचर, एंड इट्स कनेक्टेड विद द मिस्ट्री आल्सो 8th हाउस। तो उस टाइप का भी कुछ जॉब होते हैं, जैसे IB हुआ, CBI हुआ, उस टाइप के जॉब में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। And this is the house of your morality also, moral character. तो कहते हैं कि अगर 8th house अगर अच्छा होता है तो you are morally very strong, otherwise morally you may not be strong also. तो इसलिए उससे भी संबंधित है कि ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में they have high principles, they are morally very at a high level actually. फिर अगर 9th house की हम बात करें तो this is a wonderful position for the 10th house, क्योंकि 10th का लॉर्ड इन द 9th हाउस मीन्स कि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ गया, एंड दिस गिव्स वन ऑफ द हाईएस्ट योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 10th का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में चला गया, ये तो खराब होना चाहिए, लेकिन हम उस एंगल से नहीं देखेंगे, बिकॉज 9th हाउस इज द त्रिकोण हाउस, and we have a principle that whenever any Kendra and Trikon are associated, they give the yoga of the highest order. तो यहाँ पर जो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा योग बनता है, एक राजयोग बनता है, प्रोफेशन से कनेक्टेड एक्चुअली। तो ये आपको हाई अथॉरिटी देता है, और 10th हाउस 9th हाउस हमारा धर्म का भी स्थान है, और स्पिरिचुअल स्टॉलवर्ट है, बैंकर है, मेडिकल, फिलोसॉफिकल, या hereditary profession, because this is the house of your father also, so you may get involved in the hereditary profession also, or yeah, traditional education, and you get the support of father also, because 9th house is father also represented by the 9th house. 10th house का lord अगर 10th house में है तो naturally that is the best position of, one of the best position of the 10th house. So you get all those things: respect, honor, fame, eminence, stability, or such people have immense political power also, and they occupy the top position in the government also.
अगर 10th हाउस के लॉर्ड को हम 11th हाउस में देखें तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, और वैसे भी जो 11th हाउस है दिस इज द सेकंड हाउस फ्रॉम 10th house, and second house is the house of wealth actually. So the person have immense wealth from the profession, is very fortunate, provides employment to others, and he is enrolled in these type of business, seed products or chemicals or milk, and he has all the success and he gets a lot of good opportunities also. अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो 12th हाउस हमारा हाउस ऑफ लॉस का है, बट जब भी आप देखेंगे कि जब फॉरेन सेटलमेंट की बात होती है फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन 12th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट होना है, और पर्टिकुलरली जब 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो यू हैव फॉरेन इनकम और यू विल बी सेटल अब्रॉड बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। तो फॉरेन इनकम इंडिकेट करता है, बट जो 12th हाउस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्स्ट्रावेगेंस आदमी होता है, इंस्टेबिलिटी, he uses unscrupulous business affairs also, and such people they should be cautious while dealing with the government. They are, may have problem with the government also. तो ये है जो 10th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो अगर डिफरेंट हाउसेस में होते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होगा आपके प्रोफेशन के मामले में। और जो हमने प्लैनेट की बात की, और वो प्लैनेट किस साइन में है, किस राशि में है, which Rashi has the is the most prominent Rashi in the matter of profession. So that will also have an influence in the matter of profession. तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि एरिस राशि है तो such people, जैसे कहा कि they have lot of energy and they're very good leader also, they have leadership qualities also. और मंगल इसका लॉर्ड होता है, मंगल हमारे रियल एस्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे आर्मी है, डिफेंस है, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। इंजीनियर के लिए भी जो मंगल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो उसी टाइप के जो प्रोफेशन है, रियल एस्टेट एजेंट है, एक्सप्लोरर है, सर्जन है, डेंटिस्ट है, जुडिशियल, डिफेंस, पुलिस सर्विस, इंजीनियर, फायरमैन, स्पोर्ट्स, उस टाइप के जॉब में जो है ये। और जैसे मैंने कहा था कि जो एरीज साइन के लोग होते हैं, बिकॉज दिस इज अ मूवेबल साइन, तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अगर बहुत लंबा प्रोजेक्ट अगर आप इनको दे दीजिए तो दे आर टोटल फेल्योर, बट अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। सेकंड, अगर टॉरस साइन होता है तो टॉरस का लॉर्ड आप जानते हैं वीनस है, और अर्दी साइन है ये, तो it's a good from that point of view कि वीनस का लॉर्ड होने से दे आर मनी कॉन्शियस, अर्दी साइन होने से दे मे बी गुड इन एग्रीकल्चर, दे वेरी प्रैक्टिकल पीपल आल्सो। अर्दी साइन मींस कि डाउन टू द अर्थ, दे आर प्रैक्टिकल पीपल, कैरियर ओरिएंटेड हैं। वीनस लॉर्ड होने की वजह से एक्टर हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, और एंटरटेनमेंट में या लग्जरी गुड्स में डील कर सकते हैं। तो उस टाइप का इनका जो, you can examine yourself depending on the sign, the lord of the sign and what characteristic that sign has. Gemini का हम लोगों ने कहा था कि they very good in communication actually. ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन में, और इनका लॉर्ड जो है मरकरी होता है। तो बहुत जो कन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं, पोइट्स होते हैं, ओरेटर, राइटर, म्यूजिशियन, दे फॉल इन दिस कैटेगरी। और मरकरी जो लॉर्ड होने की वजह से, मरकरी जैसे हमने कहा था इज प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, और जितने भी कम्युनिकेशन से कनेक्टेड जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, नेगोशिएटर्स हो गए, चेयरपर्सन्स हो गए, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल, तो ऐसे फील्ड में इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। कैंसर है, कैंसर का लॉर्ड मून है, एंड अगेन इट इज ए फिक्स साइन। तो ऐसे लोग जो हैं कॉमर्शियल कैरियर लाइक कैटरिंग है, या मून हमारा पब्लिक को भी डिनोट करता है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, इस टाइप के लोगों इनको जो है ज्यादा सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को। लियो साइन के लोग होते हैं, वो एक तरह से कहा था कि दे आर वेरी गुड लीडर, दे मे नॉट बी गुड मैनेजर बट दे आर वेरी गुड लीडर आल्सो। तो ऐसे लोग जो है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि सन इसका लॉर्ड है, गवर्नमेंट सर्विस, पुलिस, आर्मी, पॉलिटिक्स में होते हैं, एंड द quality of these persons is they are all interested in the wealth and they want to enjoy the wealth at the fullest. उसका पैसे का चाहिए भी और उसको
उसको एंजॉय भी करना चाहते हैं उसी ढंग से। ऐसे ही जो वर्गो साइन के लॉर्ड होते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फीमेल इज अ साइन, सो they have attention to every detail actually। तो उस टाइप का जो प्रोफेशन होता है which needs lot of detail, तो जैसे ज्वेलर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं। और मरकरी जो लॉर्ड है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वो उसमें होते हैं। और अर्थ साइन है तो दे टेक प्लेजर इन गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर आल्सो। लिब्रा है, लिब्रा के लिए जो वीनस इसका लॉर्ड है, और इस तरह के लोग ट्रेडर, बिजनेस पार्टनर, रिसेप्शनिस्ट, सिविल सर्वेंट, बैंकर्स वगैरह में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है मंगल है, और इसमें जो क्वालिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि मंगल होने की वजह से ये डॉक्टर है, सर्जन है, साइंटिस्ट है, लीडर्स वगैरह बनते हैं। और एक जो इनकी क्वालिटी है कि जो पर्टिकुलरली जो मनी के मैटर होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर पाते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे अकाउंट्स, लॉयर्स, स्टॉक ब्रोकर एंड कॉर्पोरेट मैनेजर भी होते हैं। सेक्रेटेरियस है इसका, जुपिटर इसका लॉर्ड है, और ऐसे लोग पब्लिक सर्विस में, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन में, एंड दे आर बॉर्न एंटरटेनर्स एंड कन्वर्सेशनलिस्ट आल्सो। और बहुत अच्छे कॉमेडियन, राइटर्स, फिलोसफर्स वगैरह होते हैं। कैप्रिकॉर्न है, इसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और ऐसे लोग जो बेसिकली जो एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिएटिव्स, टाइम स्किल मैनेजमेंट, और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल्स हैं, बैंकर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, इस टाइप के जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही एक्वेरियस वाले जो है दे आर एक्सीलेंट इन फोटोग्राफी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली जो करेक्टर उसके प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं। और पाइसेस है, ऐसे लोग जो है एक्सीलेंट म्यूजिशियंस, पोइट्स, राइटर्स, बुक कीपर्स, इस टाइप के जॉब उनके होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से हाउसेस हैं विच आर इम्पोर्टेंट इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। जैसे मैरिज के लिए बहुत सारे हाउसेस हैं, ऐसे ही प्रोफेशन के लिए भी बहुत सारे हाउसेस हैं। हमें सिर्फ 10th हाउस को ही नहीं देखना पड़ता, बाकी भी बहुत सारे हाउसेस हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। और एज यूजुअल लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। जब तक आपका लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, आपके दूसरे हाउस कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। और लग्न अगर स्ट्रांग है तो बाकी हाउसेस कितने भी वीक क्यों ना हो, एटलीस्ट यू कैन सेल थ्रू द लाइफ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो लग्न का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बट पर्टिकुलरली प्रोफेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने कहा था कि जो लग्न है फर्स्ट हाउस, इज योर कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। आपकी विल पावर है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपके पैशंस हैं, आपकी मेंटल फैकल्टी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। और उसके बिना आप प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिल सकती। आपके अंदर कोई पैशन ही नहीं है, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपका पोटेंशियल नहीं है, तो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी। और किसी भी प्रोफेशन में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसको कि प्रोफेशन अच्छा है, तो फर्स्ट थिंग यू फाइंड दैट देयर असेंडेंट इज रियली स्ट्रांग, देयर असेंडेंट इज रियली वेरी स्ट्रांग। क्योंकि जब तक आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो आप क्या करेंगे प्रोफेशन में जो है। तो इसीलिए प्रोफेशन के मामले में फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि 10th हाउस आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाउस स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब आपकी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, पैशन वैशन कुछ नहीं है आपके अंदर जो है, तो आप कैसे करेंगे प्रोफेशन को परस्यू, और यू कैन नॉट गेट ए हायर स्टेटस इन द प्रोफेशन। तो इसलिए लग्न जो है पर्टिकुलरली प्रोफेशन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक लग्न आपका अच्छा नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, 10th हाउस कितना भी स्ट्रांग हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लग्न जो है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है, आपका पोटेंशियल, इसलिए लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब हम प्रोफेशन को एग्जामिन करते हैं तो आप देखते हैं कि हम लग्न को भी एग्जामिन करते हैं कि लग्न वाकई में ही अच्छा है या नहीं है। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है तो 10th हाउस कितना भी स्ट्रांग हो, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और you can take horoscope of any person who has achieved a particular status in the life, in profession, you find that their lagna is really strong.
आप XYZ किसी का भी हॉरोस्कोप ले लीजिए, जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा उसको प्रोफेशन में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिल सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउस है प्रोफेशन के मामले में वो आपका फर्स्ट हाउस है। फिर हमने कहा सेकंड हाउस हमने देखा कि अभी ये 5th हाउस है फ्रॉम 10th हाउस, एंड दिस इज द हाउस ऑफ रेडी कैश आल्सो, और वी कॉल इट द लिक्विड कैश और द रेडी कैश, सेम थिंग। तो you particularly in the business it's very important, क्योंकि आपको बिजनेस में बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है। बिजनेस शुरू करना हो, एक्सपेंड करना हो, न्यू प्रोडक्ट करना हो, डाइवर्सिफिकेशन करना हो, कोई भी कुछ करेंगे तो आपको पैसे की बार बार जरूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सेकंड हाउस से आएगा। और सेकंड हाउस में भी ये अर्थ त्रिकोण है, जैसा मैंने कहा कि जो सेकंड, 6th एंड 10th हाउसेस हैं, दे आर द हाउसेस बेसिकली कंसर्न्ड विद द वेल्थ आल्सो। तो वेल्थ से कनेक्टेड हाउस है, और जब तक आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी गुड इन द बिजनेस, क्योंकि पैसा नहीं आएगा आपके पास। पैसा चाहिए आपको बिजनेस में, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जब तक वो पैसा नहीं होगा आपके पास तो बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। और जैसे मैंने कहा कि अगर सेकंड हाउस जो है दैट इंडिकेट्स अबाउट योर फैमिली बिजनेस आल्सो, and when many people they are involved in the family business or they take over the family business, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन का रिलेशन हमारा सेकंड हाउस से हो जाता है। और जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हमें हाई सैलरीड जॉब भी चाहिए, हाई पैकेज चाहिए जॉब में, तो जरूरी है कि सेकंड हाउस स्ट्रांग हो। आप सेकंड हाउस को देख लीजिए, सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी क्यों ना हो, आपको पैसा नहीं होगा प्रोफेशन में जो है। तो दोनों के लिए जरूरी है, सर्विस के लिए भी जरूरी है और बिजनेस के लिए भी जरूरी है। दोनों चीजों के लिए ये सेकंड हाउस जरूरी है। फोर्थ हाउस से हम जो देखते हैं वो मेंटल टेम्परामेंट ऑफ द नेटिव है, कि व्हाट इज द अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, व्हाट आर द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द नेटिव। ये सारी चीजें हमारी प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। और ये हमारे हाउस ऑफ एजुकेशन भी है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोफेशन, कि हमारी एजुकेशन कौन सी होगी, किस फील्ड की होगी या नहीं होगी। तो उस मामले में जो है ये प्रोफेशन से डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है इसका। दिस इज द हाउस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, और पर्टिकुलरली जैसे बिजनेस में आप देखते हैं कि जरूरत पड़ती है आपको प्रॉपर्टी की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बिजनेस वगैरह आप करना चाहते हैं तो ये फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लैनेट होते हैं वो 10th हाउस को देखते भी हैं, तो इसलिए जो भी प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड होंगे उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो 10th हाउस के ऊपर भी होता है। फिर 5th हाउस की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि 5th हाउस जो है हमारा इंटेलिजेंस का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है, तो जो भी हम और प्रोस्पेरिटी का भी हाउस है, क्योंकि ये त्रिकोण स्थान है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिकोण स्थान। So this is the house of prosperity. And in every profession, whether it's a service or business, you need to involve intelligence. You need to be creative. ये दोनों के लिए जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए ही क्रिएटिव होना जरूरी है, आपको सर्विस के लिए भी क्रिएटिव होना जरूरी है। सर्विस में भी आपको इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं प्रोफेशन के लिए, whether it is service or business. So that's why fifth house plays a very important role. तो ये हमारे लर्निंग का भी है, हायर एजुकेशन का भी हाउस है, क्योंकि हम 4th हाउस से बेसिक एजुकेशन देखते हैं और 5th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। और डिफरेंट हमारे जो नए आइडियाज आते हैं प्रोफेशन में, प्रॉस्पेरिटी है, वो सब हम, क्रिएटिविटी है, वो हम इसी हाउस से देखते हैं। और दूसरा था कि जो कुछ लोगों का स्पेकुलेशन इज ए फुल टाइम जॉब, फुल टाइम प्रोफेशन। बहुत से जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, स्पेकुलेशन में हैं, तो इट इज देयर फुल टाइम जॉब एक्चुअली। और जो भी स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं वो हम 5th हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि 4th हाउस जैसे मैंने कहा कि पब्लिक का हाउस है, और 5th हाउस इज द सेकंड फ्रॉम द 4th हाउस, तो दिस इज द मनी ऑफ द पब्लिक। तो wherever the gain is through the public money, then 5th house plays a very important role. इसलिए हम जो स्पेकुलेशन के गेन होते हैं, लॉटरी के गेन होते हैं, वो सब 5th हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि वहां पर पब्लिक का मनी इन्वॉल्व होता है एंड यू गेन आउट ऑफ दैट मनी एक्चुअली।
तो इस टाइप के लॉटरी का गेन है, स्पेकुलेटिव गेन है, वो सारे हम 5th हाउस से ही देखते हैं। और जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि ये 8th हाउस है 10th हाउस से, दिस इज द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन आल्सो। प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज, कोई प्रॉब्लम प्रोफेशन में, लॉन्गेविटी के बारे में, तो वो हम सब जो है 5th हाउस से ही एग्जामिन करेंगे। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो पावर आपको मिलती है प्रोफेशन में, बिकॉज ऑफ योर ओन स्किल्स, आप अपने जो आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है या जो क्रिएटिविटी है, उसकी वजह से आपको पावर मिलती है। और बिजनेस में जैसे मैंने कहा कि आपको बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है, यू हैव टू टेक लोन और क्रेडिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और समबडी एल्स। 5th हाउस ही बताता है कि आपको आसानी से क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर जिसका भी 5th हाउस स्ट्रांग होता है तो यू सी दे अरेंज द मनी वेरी इजीली, दे गेट द क्रेडिट और द लोन वेरी इजीली। तो भी एक फायदा है 5th हाउस स्ट्रांग होने का। तो प्रोफेशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है 5th हाउस कि जो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिस बिकम्स द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन, तो प्रोफेशन की लॉन्गेविटी बन जाता है। 6th हाउस है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारा 9th हाउस है 10th हाउस है, प्रोफेशन का भाग्य है। इसके अलावा जो है ये हमारा हाउस ऑफ लोन भी है, लोन वगैरह अरेंज करना हो तो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हमारे हाउस ऑफ सर्विस भी है, जैसा हमने कहा कि जब 6th-10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ हो जाता है तो यू मे गेट इन्वॉल्व इन द सर्विस एक्चुअली। दिस इज द हाउस ऑफ योर अपोनेंट्स आल्सो, अपोनेंट्स में भी द कॉम्पिटिटर्स आल्सो, कि आपके जो कॉम्पिटिटर है पर्टिकुलरली बिजनेस वगैरह में, उनका भी हाउस है। उपाच्य स्थान है, दिस इज द हाउस ऑफ ग्रोथ आल्सो, so it indicates problems, hurdles, obstacles in the professional life, or being 9th from the 10th or 10th from the 9th, it becomes very important house, और इसको हम secondary house of profession बोलते हैं। It is such an important house from profession point of view that it is known as a secondary house of profession। और सर्विस का भी हाउस है कि अगर 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ होता है तो यू गेट इन्वॉल्व इन द सर्विस, नॉट इन द बिजनेस एक्चुअली। अगर 7th हाउस को देखें, हमने डिस्कस किया कि इन एनी केस because of the principle of Bhavati Bhavame astrology, you have to examine this 7th house also from profession point of view. तो ये भी एक secondary house of profession बन जाता है, being 10th from the 10th actually. तो it indicates the relationship with the people outside family business. तो outside family, तो naturally जो लोग हैं apart from your family members, it indicates all those people. तो बिजनेस में हम यही करते हैं कि पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, कोलैबोरेशन है, यही सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वेंचर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसी रहेगी उन लोगों के साथ जिनके साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप कैसी रहेगी। और ये हाउस इज हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स आल्सो। तो कभी कभी आप देखते हैं कि प्रोफेशन में अपोजिट सेक्स से आपको हेल्प मिलती है, तो दैट हेल्प आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम दिस हाउस, दैट इज द 7th हाउस। 8th हाउस है हमारे एप्टीट्यूड का, लिगेसी का, हिडन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, और इसको कभी कभी हम क्रोनिक डिसीज का भी हाउस बोलते हैं। बट जो हिडन है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, उसका हाउस है। हिडन वेल्थ का हाउस है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो आपको इसी हाउस से होती है, 8th हाउस से। अनअर्न्ड इनकम मीन्स कि इनहेरिटेंस में हुआ या इंश्योरेंस में हुआ या कहीं से आपको ऐसे ही मिल गया, ब्राइबरी में मिल गया, दैट इज आल्सो द हिडन इनकम एक्चुअली। तो अनअर्न्ड वेल्थ का हाउस हो गया। और इसी हाउस से पता लगता है कि whether you have some hidden agendas or not. It's a matter of great importance in the professional life. कि कुछ लोगों के hidden agendas होते हैं, अगर 8th हाउस खराब होता है तो वो that may be very harmful from profession point of view. क्रिमिनल बिहेवियर भी होता है ऐसे लोगों का अगर 8th हाउस malefic planet के साथ influenced होता है। Such people may have unethical dealing also. Unethical dealing also. तो ये सब चीजें हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
और वैसे भी जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि दिस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस, दिस इज द गेन्स इन द प्रोफेशन। तो इन एनी केस अगर आपको हाई स्टेटस लेना है प्रोफेशनल लाइफ में तो समहाउ 8th हाउस का रिलेशन भी आपका 10th हाउस के साथ होना चाहिए। और कभी कभी जो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं जहां आपको बहुत ज्यादा लोन की भी जरूरत पड़ती है, तो वही हम इस हाउस से देखते हैं कि वेदर इन केस यू नीड ह्यूज लोन वेदर यू एबल टू गेट इट और नॉट, दैट आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम दिस हाउस ओनली। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली जो लार्ज बिजनेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और वैसे भी बिजनेस हो या सर्विस हो, क्योंकि ये गेन्स इन द प्रोफेशन है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम वेदर यू आर इन द सर्विस और इन द बिजनेस आल्सो। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम इसी हाउस से देखते हैं। 9th हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्य का स्थान है, प्रोफेशन के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भाग्य है हमारा वो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। और पहली चीज तो यह है कि जो 9th हाउस की पोजीशन है, दिस इज नेक्स्ट टू द फर्स्ट हाउस। जहां तक इंपॉर्टेंस की बात है, first house is the best house, the strongest house, most important house, and second in importance is the 9th house। भाग्य स्थान है, बिना भाग्य के तो कुछ नहीं मिलता आपको, and भाग्य supersedes everything। आपका कितने भी हाउस कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर भाग्य स्थान अच्छा है तो यू गेट एवरीथिंग इन द लाइफ। so that is the important beauty of this house। तो इसीलिए हम इसको सेकंड इन इम्पोर्टेंस मानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। और जैसा हमने कहा कि 4th हाउस हमारा बेसिक एजुकेशन है, 5th हाउस हमारा हायर एजुकेशन है, और 9th हाउस इज द इवन हायर एजुकेशन। इट मींस यू गेट इन्वॉल्व इन द हायर लर्निंग, रिसर्च वगैरह जो आप करते हैं वो हम इसी उससे देखते हैं। तो ये जो भी रिसर्च है, इन्वेंशन है, एक्सप्लोरेशन है, और या क्योंकि धर्म का भी स्थान है इसलिए आपका जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है या फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड है वो हम इसी हाउस से देखते हैं। और ये दिस इज द हाउस ऑफ ट्रैवल टू द लॉन्ग डिस्टेंस। जो फॉरेन वगैरह की जब हम बात करते हैं कि आप फॉरेन यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे, देन इन दैट केस द 9th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इट आल्सो इंडिकेट द सक्सेस अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर 9th house is very strong, then it indicates that you're going to have success away from your birthplace। और क्योंकि ये prosperity का हाउस है, लक्ष्मी स्थान हाउस है, it indicates abundance of wealth, fame and eminence। और जैसा हम लोगों ने कहा था कि धर्म कर्माधिपति योग बनता है जब 9th और 10th हाउसेस के लॉर्ड का एसोसिएशन होता है, तो वैसे भी केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का एसोसिएशन है। And this is the yoga of the highest order as far as profession is concerned। तो इसलिए 9th हाउस जो है वो प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और कभी कभी 9th हाउस हमारा फादर भी है, तो अगर हमें कोई हेरिडिटरी बिजनेस है या प्रोफेशन है उसको भी हम 9th हाउस से ही देखेंगे। 11th हाउस है, 11th हाउस आपका गेन्स का हाउस है, इनकम का है, प्रोस्पेरिटी का है, आपके एस्पिरेशंस हैं, विशेस हैं, रियलाइजेशंस हैं, या सक्सेस इन ऑल अंडरटेकिंग्स आल्सो। या इससे हम फॉरेन कोलैबोरेशन भी देखते हैं, या इलेक्शंस वगैरह में अगर पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, लिटिगेशन में, या सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दे गेट वेरी गुड हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्रेंड्स और इवन फ्रॉम देयर को-बॉर्न। तो वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं कि हमें जो फ्रेंड्स या जो हमारे को-बॉर्न हैं उनसे कितनी हमारी हेल्प मिलेगी या कैसे हमारे रिलेशनशिप रहेंगे। तो वो प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी भी होता है कि कई बार आप देखते हैं कि फ्रेंड्स की हेल्प से या अपने जो को बॉन्ड की हेल्प से आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस भी मिलती है। तो ये हाउसेस हैं जो हम एग्जामिन करेंगे अपार्ट फ्रॉम द 10th हाउस। प्रोफेशनल लाइफ के लिए एग्जामिन हम करते हैं। Now the question comes about whether service or business। So very important। जैसे राजेश जी ने पिछली बार कहा भी था कि हमें कैसे पता लगेगा कि सर्विस आपके लिए ठीक है या बिजनेस ठीक है आपके लिए, तो उसको हमें उसी एंगल से देखना पड़ेगा कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है। So once we understand those requirements, then it becomes very simple to examine whether
यू आर लाइकली टू गो फॉर सर्विस और द बिजनेस, या बिजनेस आपको सूट भी करेगा या नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन जैसे आप देखेंगे ऐसे हैं कि आप कितने भी क्वालिफाइड हो बट यू आर नॉट मेंट फॉर द सर्विस, यू कांट वर्क अंडर ए बॉस, तो सर्विस आपके लिए बेकार हो जाती है, फिर आपको बिजनेस का के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता एक्चुअली में। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या पॉसिबल है, कैसे होते हैं। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी, क्या रिक्वायरमेंट है। पहला है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, करेज एंड द रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस में आप देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, प्रॉब्लम बहुत आती हैं, तो एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि जरा सी कोई प्रॉब्लम आई तो आप भाग गए उससे, जो है हिम्मत होनी चाहिए। एंड मेन इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, unless you have a risk taking ability you can't be successful in the business actually। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये चीजें आपके अंदर जो है होनी चाहिए। Then next is the foresightedness and the intelligence। foresightedness is so important। क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, आपको कैसे आपको चेंज करना है, क्या बिहेवियर होने वाला है, मार्केट बिहेवियर होने वाला है, क्या इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट 2 साल के बाद रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे हम चेंज करें। तो अनलेस यू हैव ए गुड फोरसाइटेडनेस, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज 8-10 साल के बाद बेकार हो जाती हैं कि अनलेस एंड अनटिल दे चेंज देमसेल्व्स। अगर उसी पर लगे रहे तो आज बिल्कुल जीरो हो गई हैं कंपनीज में। उन्होंने चेंज नहीं किया अपने हिसाब से, उन्होंने नहीं फोरसाइटेड नहीं थी कि 10 साल के बाद इस प्रोडक्ट का क्या होने वाला है। तो फोरसाइटेडनेस बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखेंगे कौन से प्लैनेट हैं, कौन से हाउसेस हैं जो इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। The right decision at the right time, and that too independent decision making। You are the boss, you are the head of your business actually। तो naturally ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की तरह कि 5-7 लोग और भी हैं, फाइल मूव हो रही है। You have to make your own decisions immediately, that too immediately, you can't wait also। Many time it happens कि you have to make decisions immediately। So right decision at the right time, and that too independent decision making, which may not be the requirement of service but it is very important for business। Then a strong desire to keep it going in spite of all odds। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में, कभी कभी आप देखते हैं कोई बहुत लॉस हो जाता है या और तरह की प्रॉब्लम आती है, बट आपको वहाँ खड़ा रहना है, ऐसा नहीं कि भागना है कि घबरा जाना है। तो यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर कि टू कीप इट गोइंग, कि मतलब एक जैसे कहते हैं कि एक इच्छा शक्ति इस टाइप की होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है, मैं फेस करूंगा उसको, प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। देन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड, which may not be required in the service, but बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी आपके बिजनेस वर्ल्ड है, आपका डोमेस्टिक है या अब्रॉड का है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। And this is the very important point कि unless you have a good relationship with the business world, you cannot be a success in the business। Then money for the investment, जैसा मैंने कहा कि बिजनेस में आपको बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है, सर्विस में नहीं पड़ती। तो ये एक चीजें हैं जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है जिनकी बिजनेस के लिए, जो सर्विस में आपको जरूरत उन चीजों की नहीं होती है एक्चुअली। तो हमें जब देखना है कि आप सर्विस में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे, क्या आपको सूट करेगा, तो you have to examine all these points and what are the planet, which are the houses concerned with all these things, so that we have to examine। अब ये कहा गया कि अगर फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का आपस में एसोसिएशन हो, फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का आपस में एसोसिएशन हो, लग्ना इज एसोसिएटेड, लग्ना हैज एन एसोसिएशन विद द हाउस ऑफ फॉर्च्यून, तो ऐसे लोगों को देखिए, दे कैन नेवर वर्क अंडर ए बॉस, they want to be their own boss। that is the basic evocation or the aptitude of such type of persons। उनको आप कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, but they never like to work under a boss। they say that they want to be their own boss। तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली बिजनेस ही सूट करता है, सर्विस उनको सूट ही नहीं करता एक्चुअली। तो जब भी आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखें
कि लग्न का और 9th हाउस का एसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसे लोग सर्विस में दे आर टोटल फेलियर बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू वर्क अंडर अ बॉस। तो ऐसे लोगों को बिजनेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता, और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए फिर अल्टीमेटली जो है बिजनेस ही सूट करता है, सर्विस सूट नहीं करती है। फिर अभी जो बात हो रही थी कि यू नीड लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेस, नेचुरली सेकंड हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। और और जो अर्थ के हाउसेस होते हैं, हमने कहा 2, 6, 10 हाउसेस होते हैं, विच इज द हाउस ऑफ वेल्थ एक्चुअली, सेकंड, 6th एंड 10th हाउसेस। तो 6th सेकंड हाउस तो हो गया आपका, लिक्विड कैश है आपके पास, फैमिली बिजनेस है। इसके अलावा जो 6th एंड 10th हाउसेस होते हैं, 6th हाउस रिप्रेजेंट्स द लोन फ्रॉम द पार्टनर्स आल्सो, लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, और जो 10th हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा वो भी आप एग्जामिन कर सकते हैं कि अपने पास से होगा या बैंक से मिलेगा या पार्टनर से मिलेगा, दैट आल्सो कैन बी एग्जामिन फ्रॉम द सेकंड हाउस। कहने का मतलब है कि बिजनेस के लिए सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा यू कैन नॉट बी successful in the business because business needs money all the time actually। तो उसके लिए जो सेकंड हाउस का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। फिर जैसे कहा कि यू नीड लॉट ऑफ करेज, यू नीड द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एंड कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। एक्चुअली वो कहाँ से आएगा, वो थर्ड हाउस से आएगा। थर्ड हाउस हमारे बाहुबल हम जिसको कहते हैं, हमारे अंदर इनिशिएटिव है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, वो सारी चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो और उसका लॉर्ड मंगल, बिकॉज मंगल ही आपको करेज देता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड हाउस और मंगल, मार्स, दे हैव टू बी वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप ऑफ ए बिजनेस प्रोफेशनल। जब तक वो थर्ड हाउस और मंगल वेल प्लेस्ड नहीं होंगे तब तक आपका बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। और इनकी जरूरत नहीं है आपको, सर्विस के लिए इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए तो बहुत जरूरत है इन हाउसेस की और प्लैनेट मार्स की जो है। वही सारी चीजें जो जरूरी हैं आपके बिजनेस के लिए, वही दोनों चीजें देते हैं। और अगर शनि, सैटर्न इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस पर्सन्स आल्सो। तो वो कहते हैं कि जब शनि थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो यू बिहेव लाइक ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू बिहेव लाइक ए मोर मैच्योर पर्सन, जो कि इसकी बेसिक क्वालिटी है शनि की। और जैसे लोगों के जो एबिलिटी है टू हैंडल द ऑड सिचुएशंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दे ऑलवेज बिहेव लाइक ए experienced, as if they are very rich in experience or they are very mature in that field। तो जब भी शनि आप देखेंगे थर्ड हाउस में है तो ऐसे लोग बड़े जो ऑड सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल कर पाते हैं, उनकी अच्छी एबिलिटी होती है, and they know the tricks to grow and expand also, क्योंकि they behave like a very experienced persons actually। तो ये भी जो है शनि का थर्ड हाउस में प्लेसमेंट होना इज गुड फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिनका भी अगर शनि अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड भी है तो दे कैन डील विद द ऑड सिचुएशंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि एक बिजनेस पर्सन को डील करने की जरूरत भी पड़ती है। तो बिजनेस के लिए जैसे कि सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट है वेल्थ के लिए, ऐसे थर्ड हाउस आपके करेज के लिए, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए, आपके जो कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स उसके लिए जरूरी है। तो थर्ड हाउस और मार्स का प्लेसमेंट होना बहुत अच्छा प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। फिफ्थ हाउस को देखो, जब ने कहा कि यू शुड अप्लाई इंटेलिजेंस, जब भी आप अच्छे बिजनेस होंगे, यू शुड हैव द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो इसकी बात की हमने, वो जब भी होगा जब फिफ्थ हाउस आपका स्ट्रांग होगा। फिफ्थ हाउस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस एंड द क्रिएटिविटी एक्चुअली, और इसका जो सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है। तो जुपिटर का भी स्ट्रांग होना जो है वो जरूरी है
फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। और हम लोग ये बात ही कर रहे हैं कि 7th हाउस हमारा बिजनेस का हाउस है, और इसीलिए 7th हाउस जो है बिजनेस प्रोफेशनल के लिए बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो बिजनेस है, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट्स हैं, तो और जो कहते हैं कि डिजायर टू कीप इट गोइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द 7th हाउस। आप लगे रहते हैं बिजनेस में, कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम है तो लगे रहो, लेकिन जब तक वो एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और जैसे कहा कि इट इज द हाउस ऑफ ऑल पीपल अदर देन योर फैमिली मेंबर्स, तो बिजनेस में उन्हीं की जरूरत पड़ती है। यू नीड गुड रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्ल्ड एक्चुअली, तो वो 7th हाउस ही बताएगा कि आपके जो रिलेशनशिप है विद द बिजनेस वर्ल्ड कैसी है। तो 7th हाउस तो है ही बिजनेस का हाउस, हम इसको कहते ही हैं बिजनेस हाउस ऑफ बिजनेस। तो हर चीज के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, पार्टनरशिप है, उन सब के लिए जो है ये 7th हाउस जो बिजनेस में होता ही है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11th हाउस है। 11th हाउस जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स, ऑल योर ड्रीम्स जो आपके हैं, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द बिजनेस, दैट ऑल वी सी फ्रॉम द 11th हाउस, और वो बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। टाइम टू टाइम जो है एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट, so all those things we see from the 11th house. 12th हाउस है कि कहते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं बिजनेस में, दे आर कंट्रोल्ड बाय द 12th हाउस। तो बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बड़े बिजनेस में आपका डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज डिटरमाइंड बाय द 12th हाउस। इसलिए जो बिग एंटरप्रेन्योर्स के लिए 12th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, 12th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो देखा आपने कि जो हमारे डिफरेंट हाउसेस हैं, कि जब तक 10th हाउस का एसोसिएशन, इसमें से जो इम्पोर्टेंट हाउस बिजनेस के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 2nd है, 7th और 11th हाउसेस हैं। तो जब 10th हाउस का एसोसिएशन 2nd, 7th या और 11th हाउस के साथ हो जाता है, तो दैट इंडिकेट्स सक्सेस इन बिजनेस। तो 10th हाउस का एसोसिएशन, 2nd हाउस आपका पैसा हो गया, 7th हाउस आपका बिजनेस हो गया, 11th हाउस आपके जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या नए बिजनेस प्रपोजल्स हैं, उससे रिलेट करता है। तो इसलिए 10th हाउस का एसोसिएशन विद 2nd, 7th एंड 11th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन बिजनेस। और बिजनेस के लिए मरकरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मरकरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस। और कहते हैं कि जो मरकरी है, दैट इज द ओनली प्लैनेट which gives you the capability of making friends and holding them together for a long time। जैसे आपने दोस्त बनाना और दोस्तों को बना के लंबे टाइम तक अपने साथ रखना, तो दैट इज द मेन रोल ऑफ द प्लैनेट मरकरी। आप जिसका भी देखिए कि मरकरी जिसका भी स्ट्रांग होता है, तो ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत होते हैं, और फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम के लिए होते हैं। ऐसे नहीं कि आज फ्रेंडशिप हुई और 1 साल के बाद खत्म हो गई, तो दे होल्ड देम टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो ही बिजनेस वर्ल्ड के लिए जरूरी है कि रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जिनका भी मरकरी स्ट्रांग होता है, फर्स्ट थिंग दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन आल्सो। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो, तो इंटेलिजेंस का इन्वॉल्व करते हैं, और कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस एक्चुअली। तो जिनका भी मरकरी अच्छा होगा, और रादर मैं कहूँगा कि बिजनेस के लिए मरकरी का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आपके रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे होंगे, और साथ में जो है आपके जो फ्रेंड्स वगैरह या जो लोग बनेंगे, आप इंटेलिजेंस का भी उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो कहा कि जो मरकरी है, इट मेक्स द नेटिव प्रूडेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग और मैनेजिंग बिजनेस। इट गिव्स इंटेलिजेंस विद द विजन एंड कैपेसिटी टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो मरकरी का रोल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में अगर आपको किसी भी हायर पोजीशन में पहुंचना है, अगर कोई बहुत बड़े बिजनेस को संभालना है या बड़ा बिजनेसमैन होना है, तो यू नीड लॉट ऑफ धन योगास एंड राज योगास।
जो जरूरी नहीं है कि वो सर्विस में हो, बट बिजनेस के लिए जो आपके हॉरोस्कोप में अच्छे धन योग होने चाहिए और राजयोग भी होने चाहिए, जब भी आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। धन योग नहीं है तो पैसे का अरेंजमेंट होगा ही नहीं आपके पास। तो किसी भी अगर आप बिजनेसमैन का हॉरोस्कोप देखेंगे, दे हैव लॉट ऑफ गुड धन योगास आल्सो, अच्छे जो बिजनेसमैन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस के लिए, जो हमने देखा है डिफरेंट हाउसेस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो जब तक ये हाउसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। तो हम ये विल कंटिन्यू विद दिस, वी विल सी व्हाट वी नीड फॉर सर्विस आल्सो, एंड देन we can decide easily ki whether one should go for service or for the business actually. So I think now I stop here and I give you a chance to get your doubts clarified. अनिल जी, जी, जब आप बोलते हैं कि 1st and 9th हाउस कनेक्टेड है, that means कि we can see through नक्षत्र लॉर्ड also connection. नहीं, नक्षत्र लॉर्ड से कनेक्शन नहीं, बेसिकली हम जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस स्टेज में हम नक्षत्र के पास नहीं जाते हैं। बेसिकली वी हैव टू सी कि लॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड हो, लगन का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड हो, 9th का लॉर्ड लगन में प्लेस्ड हो, एक्सचेंज हो, एक दूसरे को देखते हो, तो उस एंगल से हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके सर। जैन साहब, हमें ये कहना है कि आप असेंडेंट के स्ट्रॉन्ग की बात करते, स्ट्रेंथ होने की बात करते हैं, तो असेंडेंट तो सभी का अच्छा होता है, ये भी किसने कहा सबका अच्छा होता है? अगर असेंडेंट सबका अच्छा हो तो लाइफ विल बी वंडरफुल फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली प्रॉब्लम तो असेंडेंट की वजह से ही होती है सारी, जरूरी नहीं है। फर्स्ट हाउस में असेंडेंट तो असेंडेंट कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है? जिनका असेंडेंट स्ट्रॉन्ग होता है वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर किसी का असेंडेंट स्ट्रॉन्ग हो गया फिर आपको क्या चाहिए? यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स एक्चुअली। अनिल जी, हमने सब कुछ तो यहाँ से देख लिया, D10 से क्या देखेंगे? किसी अभी D10 अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना ये है, नहीं, पहले राजेश जी का जवाब कि D10 से हम क्या देखेंगे फिर जब सारा यही से देख लिया। देखिए, ऐसा होता है कि जो लग्न चार्ट है that indicates all the possibilities, probabilities, कि ये इंडिकेशन है, ये ऐसा हो सकता है। दिस इज इंडिकेटेड बाय द लग्न चार्ट। बट ये जो इंडिकेशंस हैं ये वाकई में ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपको? लग्न चार्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मतलब D10 बिल्कुल बेकार हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। D10 will supersede it. या D10 सुपरसीड्स एवरीथिंग। जैसे नवांश चार्ट आपको मैरिज का सुपरसीड कर, नवांश का अगर लग्न वीक है मान लीजिए किसी हॉरोस्कोप में, जैसा आपने देखा भी था, तो 7th हाउस 8th हाउस कितना भी अच्छा हो वो सब बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और होता भी ऐसा ही है कि बहुत से आप जब लग्न चार्ट देखते हैं, यू डोंट गो इनटू द डिविजनल चार्ट, तो कभी कभी बड़े अच्छे इंडिकेशन मिलते हैं और कुछ होता नहीं है उस व्यक्ति के पास में, क्योंकि डिविजनल चार्ट दे डोंट सपोर्ट दैट। तो डिविजनल चार्ट से हम कंफर्मेशन लेते हैं, जो हमने देखा लग्न चार्ट में उसको कंफर्म करते हैं कि वाकई में ऐसे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तो इट सुपरसीड्स एवरीथिंग एक्चुअली डिविजनल चार्ट्स। ये सब मैंने भी देखा है कि आपका अगर लगन चार्ट में कुछ चीज डेबिलिटेड है वो एक्सॉल्टेड हो जाती है जाके आपके डिविजनल चार्ट्स में, एंड इट गिव्स वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। वहाँ आप थोड़ा मुस्कुराना सीख जाते हैं डिविजनल चार्ट में जाके, अरे हमारा तो काम बन गया। हाँ बिल्कुल। और देखिए, दूसरा मेरा ये कहना है कि आप धन की जो बात करते हैं बिजनेस के लिए, धीरू भाई अंबानी के पास तो पैसा नहीं था, रामदेव के पास पैसा नहीं था, ये आपका जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी उनके पास पैसा नहीं था। और टेल मी वन थिंग कि फ्रॉम वेयर धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड? साइकिल पर बेचता था वो। हाँ, so do you want to live like that for a long time? अगर आज के टाइम में अगर हम देखें, कोई हम बिजनेस में कहें कि जरूरत नहीं है, तो he will have to start like that only। फिर 50 साल वैसे ही गुजारने पड़ेंगे साइकिल पे बिजनेस करने से। You can't tell them कि वो तो लास्ट में जाके कोई ठीक है उनको सक्सेस मिल गई, बट थ्रूआउट द लाइफ देखिए ना आप उनकी क्या रही लाइफ पूरी की पूरी जो है। हम वो नहीं चाहते आजकल कि हम कहें बच्चे को तुम साइकिल पे बेचो 50 साल पहले और फिर पैसा आएगा तुम्हारे पास। एक आप देश दशा और काल की बात करते हैं,
तो जी रामदेव के लिए, योगी जी के लिए, और इवन धीरूभाई अंबानी के लिए। हाँ, तो वो बहुत अच्छे, यही मैंने कहा कि हमने कहा कि धन योग राजयोग अगर है आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए तो कहा कि अच्छे बिजनेस के लिए आपके योग, अपने हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे धन योग या राजयोग होने चाहिए, जो सर्विस में जरूरी नहीं है। तो उनके हॉरोस्कोप में ऐसे योग थे, जो होंगे, मतलब जो पर्टिकुलर दशा ऑपरेट हुई एंड दे गॉट दैट पोजीशन। बट देखिए वही चीज है, अब रामदेव का आप कहेंगे कि उसके कितने साल के बाद सक्सेस मिली, क्या लाइफ रही शुरू से, क्या एजुकेशन उसकी हुई है, बट एक पर्टिकुलर टाइम में एक ऑपरेट हो गया, दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एक्चुअली। वो हम उसको तो हम वेट नहीं करेंगे ना किसी का भी, जो है कि आप राम सड़क, क्या क्या उसकी क्या पोजीशन थी उसकी, आप देखो ना। रामदेव ने भी शुरू में साइकिल पर दवाएं बेची हैं कंट्रोल के अंदर। कुछ नहीं किया उसने, जो किया वो आप सब जानते ही हो। यस। बट समहाउ एट ए पर्टिकुलर टाइम कुछ योग था, वो ऑपरेट हो गया और रिजल्ट उसको मिल गए। बट कोई एजुकेशन तो नहीं हुई उसकी, इंटेलिजेंट तो नहीं है कोई ऐसा, तो फिर वैसी लाइफ होगी। वो तो चांस की बात है, अगर अच्छे योग होंगे तो वो लास्ट में जाके ऑपरेट हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी आपको, लेकिन बाकी लाइफ तो ऐसी धकेलनी पड़ेगी। तो जिनको जॉब नहीं करना, तो उनके प्लैनेट की वजह से हो सकता है कि उनका ऐसा मन नहीं होता, जॉब नहीं बिल्कुल, करना है। जैसे मैंने कहा कि जब लग्न और 9th हाउस का एसोसिएशन होता है, दे डोंट हैव एनी एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, दे कांट वर्क अंडर ए बॉस। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मैं बॉस के अंडर काम नहीं करूंगा, मैं अपना भले कुछ भी करूं, लेकिन बॉस के अंडर नहीं कर सकता मैं। यू कांट टेक द ऑर्डर फ्रॉम द बॉस। तो वो एक एप्टीट्यूड हो गया आपका कि आपको सर्विस सूट ही नहीं करती है उस केस में, जो जैसे मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमने देखा कि जैसे पहले बीच 9th और 10th हाउस का एक धर्म कर्माधिपति जो प्रोफेशन के लिए सबसे हाईएस्ट जगह होता है। बिल्कुल किसी का अगर जैसे सैटर्न दोनों घर का लॉर्ड हो, मतलब 10 और 11 साइन है, तब हम देंगे ये जो कैसे ऑपरेट होगा तब। It's a very good position of 10th house, but it's not exactly dharma karmadhipati योग. It's fall in the lower category actually, but it's not exactly dharma karmadhipati, but it's a good position because Saturn is the lord of both the houses. योग कारक हो जाता है Saturn यहाँ पर, so that also gives you very good results. But you can't take it exactly in the form of dharma karmadhipati योग. Any other question? ये जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर अगर खोलें तो जहाँ बेसिक डाटा है उसके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहते थे। हाँ पूछिए। हाँ देखिए, शेयर करिए कुछ भी, जस्ट ओपन करिए, हम बताते हैं। ये है, हाँ तो जो ये राइट हैंड साइड पर टॉप में, इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करिए, राहु के नीचे, ये राहु लिखा आ रहा है, इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। नहीं राइट हैंड, हाँ इस पर आप देख केतु, इसके बाद मंडी कुलिका, ये और नीचे जाइए, जाने क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है। देखिए हाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको, उसको हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था, सब प्लैनेट्स नहीं किए थे। नहीं, ये सब नहीं किए थे। नहीं, इसके नीचे 20 है साहब, और समझ में नहीं आता क्या है ये। और इसी तरह नेटल चार्ट के नीचे वाली इंफॉर्मेशन भी कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, दीज आर ऑल सब प्लैनेट, जो धूम है, व्यातिपात है, परिवेश है, इंद्रचाप है, उपकेतु है, काल है, ये सब सब प्लैनेट हैं। और इसके अलावा जो मृत्यु है और ये अर्ध प्रहर है, यम घंटक है, ये सब वही हैं। और फिर ये प्राण स्फूर्त वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, सहम होते हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। बट नॉर्मली यू आर नॉट कंसर्न विद दैट। आई डोंट नो व्हाट इज दिस B2 B3, पता नहीं। कुंडा है, योगा स्फूता है, हाँ बहुत सारे सहम होते हैं, सहम को मेरे ख्याल में स्फूता लिखा है इन्होंने जो है। इसी तरह नेटल चार्ट के नीचे जाइए आप, 2-3 इंफॉर्मेशन लगता है जाननी चाहिए हमें। कौन सी? नेटल चार्ट में नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पर नहीं, नेटल चार्ट जहाँ लिखा हुआ है, इस बॉक्स को नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। इसको
हाँ इसको कैसे होगा? नहीं 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 जैन साहब, नीचे नटाल चार्ट जहाँ लिखा है हेडिंग टाइम लिखा है, टाइम जोन लिखा है, इसके नीचे वाली इन्फॉर्मेशन डेट टाइम जोन ये लिखा अच्छा, है। इसको यहाँ इसको पर हाँ, yes, इसको इसके नीचे जाइए। scroll करिए। अब ये इसमें लिखा होगा कि देखिए कला योगा और इतना टाइम लेफ्ट, जैसे ये तिथि इसने परसेंट लेफ्ट, ये व्हाट इज दिस? कहाँ काला लिखा है? कला लॉर्ड काला लॉर्ड और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए और काला मीन्स ये एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे असेंडेंट होते हैं, हुरा लगना वगैरह, बहुत सारे असेंडेंट होते हैं एक्चुअली में, तो उनका अलग अलग रोल होता है, बट उसी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड होते हैं, तो उसी से कनेक्टेड होता है एक्चुअली में। तो ये गौरी पंचांग में कुछ कला होता होगा, तो कुछ साउथ इंडियन टर्म्स हैं, ये अपने होते होंगे इनके कुछ। अच्छा चलिए, आयनांश तो ठीक है, साइरियल टाइम ठीक है, जन्म घटी ठीक है, ये आपका बर्थ टाइम है इन घटी पल विपल में जो है वो है ये। और काल और महाकाल पता नहीं। होरा लॉर्ड, ये होरा लग्न होता है उसका लॉर्ड है, करण ये वाला है, योग ये है, ये सब चीजें तो ठीक है। नक्षत्र है, वीक डे है, तिथि है, लूनर मंथ है, टाइम जोन है, ये तो सब चीज ठीक है। कला है, कला में भी सम अदर टर्म एक्चुअली। इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, उसमें देखिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि कुछ साउथ इंडियन पंचांग से कनेक्टेड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कुछ होते होंगे जो वहां पर कुछ प्रचलित होंगे, तो उसमें उसकी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब प्लैनेट हैं, 10 सब प्लैनेट होते हैं जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट दोस 10 सब प्लैनेट्स आल्सो, बिकॉज उसमें से जो एक प्लैनेट होता है मांडी या गुलिका होता है, दैट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन योर हॉरोस्कोप, तो वो भी एक वन ऑफ द सब प्लैनेट है। तो आपने देखा भी होगा कि मंडी या गुलिका लिखा है ना, जैसे जी के लिखा हुआ है यहाँ पर, yes. ये गुलिका लिखा हुआ है, ये मंडी लिखा हुआ है, MD। तो ये these are all सब प्लैनेट्स एक्चुअली। ये A6 A7 ये आरूढ़ लग्न होता, आरूढ़ ऑफ 6th हाउस, आरूढ़ ऑफ 7th हाउस, इस तरह से होता है। What is the definition of subplanet? हाँ, सब प्लैनेट वी विल डिस्कस, मे बी इसको खत्म करके वी विल डिस्कस अबाउट सब प्लैनेट। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड में चक्रास पर जाकर करिएगा जरा क्लिक, एक्टिव लेफ्ट पे। These are all divisional charts। नहीं, चक्रास के बाद इस पर आ जाइए आप, किसी भी उस पर तिथि परवर्ता या ये जो भी है, ये 3-4 कौन सा? ये सुदर्शन चक्र हो गया, ये सुपर सुदर्शन चक्र। इसके बारे में बताइए, कैसे देखें इसको, क्या समझें इसके बारे में? हाँ, कुछ नहीं समझना आपको। दिस इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ लग्ना, मून एंड द सन चार्ट। वो आपके पास ऑलरेडी है हॉरोस्कोप में, तो उसको एक जगह बना दिया इन्होंने कि इकट्ठा आप देख पाओ इकट्ठा जो है। दैट इज ओनली पर्पज ऑफ दिस, नथिंग एल्स। आपके पास अलग से जो ये चार्ट है यहाँ पर, जो बेसिक चीज में है, ये आपको लग्न चार्ट है। इसको मून को फर्स्ट हाउस मान लेंगे तो मून चार्ट हो जाता है, सन को फर्स्ट हाउस मान लेंगे तो सन चार्ट हो जाता है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो रिजल्ट होते हैं, कभी लोग लग्न चार्ट देखते हैं, कोई सन चार्ट देखता है, कोई मून चार्ट देखता है। तो ये कहा था कि जो इनमें से तीनों में से जो भी मोस्ट पावरफुल होता है, उस चार्ट से अगर आप एग्जामिन करेंगे हॉरोस्कोप को, तो उसके रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होंगे उस नेटिव के लिए जो है। तो इसलिए सुदर्शन चक्र क्या हुआ कि हमने तीनों को सुपर इम्पोज कर दिया एक ही जगह पर, सो दैट एट ए ग्लांस यू कैन सी ऑल द थ्री एक्चुअली। वो आपने कर तो दिया, हमें समझ में तो आया, कुछ देख के समझने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, उसमें आप क्यों जा रहे हो? जब ये आप देख लो अपने आप, यहाँ से लग्न चार्ट है, इसको मून चार्ट फर्स्ट हाउस मान के देख लो। और आपने देखा होगा कि इसमें तो नहीं है, बट जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मून चार्ट अलग से बना होता है। हाँ, बना होता है। तो ऐसे ही सन चार्ट कुछ लोग बनाते हैं अपना। तो इन तीनों चार्ट का एक सुपर इम्पोजिशन है। और क्या है यहाँ पर, जैसे ये आ गया, ये इन तीन है, 1, 2 और 3, इनका सुपर इम्पोजिशन है बस तीनों का। और क्या, ये त्रिपताकी चक्र होता है। हाँ, ये समझ में नहीं आया। इसको हम वर्षफल में यूज करते हैं। वर्षफल में जैसे एक ये है, मान लीजिए मरकरी,
तो मरकरी के 3 वेद हो सकते हैं, एक मार्स भी वेद कर रहा है, सैटर्न भी वेद कर रहा है, और तीसरा कौन सा, यहाँ पर कोई प्लैनेट अगर होता तो करता। तो ये हम देखते हैं कि हर प्लैनेट का वेद जो है कौन कौन से प्लैनेट करते हैं, और इस त्रिपताकी चक्र का हम एनुअल हॉरोस्कोपी में या वर्षफल में इसका इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। तो इस्तेमाल है, बट अभी आपके पर्पस के लिए नहीं है उसको, आप इतना परेशान मत होइए जो है। धीरे धीरे सब आ जाएगा, लेकिन जो मेन चीज है अभी आपको, आप क्या करते हो कि थोड़ा आगे चलते हो। सर आपने एक बार बोला था कि जैसे राहु और केतु का जो मेन में नहीं देखते हम, ट्रू में नहीं देखते, अभी मेन डिग्री में देखते, वो सिर्फ चेंज कहाँ से करेंगे, वो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, इसमें हॉरोस्कोप में ना यहाँ पर है ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहाँ बेसिक में आप जाएंगे ना, यस सर। और बेसिक में जो प्रेफरेंस है ये वाला, प्रेफरेंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन, राइट, यस सर। रिलेटेड टू कैलकुलेशन, और फिर सॉरी प्लैनेट कैलकुलेशन ऑप्शंस, तो यहाँ पर राहु आता है, ट्रू नोट दिखा है यहाँ पर। यस सर। तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो मीन आ जाएगा, मीन नोट, तो हमें ट्रू नोट पर रखना है इसको, दैट्स व्हाई इट हैज बीन केप्ट ऑन द ट्रू नोट एक्चुअली। ओके सर। तो प्रेफरेंस में जाके आप कैलकुलेशन में जाके आप, ये लास्ट में आता है ऑप्शन राहु केतु का। ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसा भी ये जो नंबरिंग है D1, D2, D7, D10 है, ये सीक्वेंशियली नहीं है क्या, बीच बीच में मिसिंग है मतलब? देखिए डिविजनल चार्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 16 डिविजनल चार्ट्स को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 16 डिविजनल चार्ट आपको दिखाए हैं ये वाले, जी बेसिक के अंदर ये है, तो 16 डिविजनल चार्ट्स हैं। और जैसे D1 का मतलब होता है कि राशि को हमने, एक राशि है वो 30 डिग्री की। D2 का मतलब हो कि हमने राशि को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वो पूरा चार्ट बन गया आपका। D3 है, राशि को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इसलिए हम उसको D3 बोलते हैं। फिर D3 के बाद D4 चार्ट यूज होता है, चतुर्थांश हम जिसको हम बोलते हैं, वो यूज होता है। फिर D7 होता है सप्तांश चार्ट, D7। फिर D7 के बाद हम स्ट्रेट अवे गो टू D9 नवांश चार्ट, 9 हिस्से किए। फिर हम D10 को जाते हैं, 10 हिस्से किए राशि के। फिर D12 को जाते हैं। तो इस तरह से मतलब नॉट कि हमें D1, D2, D3 ऐसे करना है, बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट चार्ट है वो 16 है, और उनका जो अलग अलग डिवीजन के हिसाब से हमने उनको नाम दिए। D16 मतलब एक राशि को हमने 16 हिस्सों में डिवाइड किया। D24 में हमने राशि को 24 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह से। ओके वो केवल रिफाइन करने के लिए रिजल्ट्स को नहीं, रिफाइन नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम लाइफ का इंडिविजुअल एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं, उससे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको कंफर्म करते हैं कि जो इंडिकेशन हमें लग्न चार्ट में है वो वाकई में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या उसके बारे में डिटेल जो हम लोगों ने देखा था, जैसे सप्तांश चार्ट में, नवांश में और दशांश में हम देख रहे हैं अभी। ये मुंडेन क्या चीज होती है बाबा? मुंडेन शब्द मुंडेन इज अबाउट मुंडेन इवेंट्स की, इंडिविजुअल इवेंट की बजाय आप देख रहे हैं कंट्री में कब बारिश होगी, कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब कोविड जाएगा। वो जा नहीं रहा, कोविड जा नहीं रहा है मगर। हाँ, तो ये अननोन इवेंट्स हैं जो पहले कभी हुई नहीं है, तो nobody is having any idea। तो जब हम we don't talk about an individual, we talk about मैक्रो लेवल पर जो हम बात करते हैं, कंट्री की, स्टेट की, पॉलिटिक्स की, या बरसात की, अर्थक्वेक की, तब उसको वो सब चीजें मुंडेन में कवर होती हैं। ओके, कोविड कब जाएगा, कुछ आइडिया? मतलब समझ तो नहीं आ रहा है। एक जन एक टाइप का बोलता रहता है। हाँ, समझ में अगर आ गया होता फिर तो कोविड की जन्म पत्री नहीं एग्जिस्ट करती है असल में। आइडिया क्या है, कितना दिनों तक और रहेगा? This is unknown thing, so nobody knows actually। वैक्सीनेशन आने तक नहीं जाएगा। अगर बार बार आता फिर तो लोगों को पता होता कि भैया ऐसे टाइम में जाता है ये, बट ये तो बिल्कुल ही अननोन चीज है, तो इसलिए। जैसे डेंगू का मालूम है कि वो इस मौसम में आता है, चला जाता है। हाँ, तो इसका तो कुछ पता ही नहीं है ना, ओरिजिन का ही नहीं पता क्या है।
चलिए ठीक है, we will continue on Friday this Dashan chart. Thank you very much. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. Thank you. Right.